Hello friends, a very warm welcome to Ansarkari, and today we in General Studies paper 2. Again, we are taking up very important previous year questions. We will try to understand that when we are writing on our own with our profound understanding, what kind of expression comes on the paper in exam like conditions, and also what keywords we can learn and what more we can add to it. Simple but a very significant exercise. So let's start. India has recently signed to become founding member of New Development Bank. पहले ये क्वेश्चन आज आया था तो उससे पहले भारत ने ज्वाइन किया था. And also Asian Infrastructure Investment Bank. How will the role of the two banks will be different? Discuss the strategic significance of these banks for India. तो दो एस्पेक्ट है क्वेश्चन के. पहले में आपको दोनों बैंक्स के बारे में पता होना चाहिए. दूसरा एस्पेक्ट तो फिर भी इजी है, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस का वन कैन थिंक और, बट द नॉलेज दैट हाउ द टू बैंक्स आर गोइंग टू फंक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसमें से एक बैंक के जो हेड हैं वो इंडियन ही होंगे. शुरू से ये बात हुई थी. दैट इज हाउ द सिग्निफिकेंस गोस. NDB and AIB's constitution reflects the rise of multilateralism and one of the outcomes of India's non-aligned movement, which upheld the democratic method. Very good push, especially bringing the non-aligned movement over here, basically because China is playing very important role. Both of them constitutes the two eyes of the rise of global south with complementary roles. I think wonderful, very wonderful and a very good flow in the introduction. NDB, renewable energy leading a priority, majorly global south and emerging countries, sustainable infrastructure in Asia and beyond. BRICS currency to push for de-dollarization, development stages, boost regional connectivity in Indo-Pacific. चलिए आगे चलिए. Message of equality in all directions, finance to African countries, climate resilience and adaptation based growth finance. I think बहुत ही significant और बहुत ही simple clarity से लिखा. अदर एस्पेक्ट तो इसका वही है कि वन मस्ट नो लिटिल बिट ऑफ फैक्ट्स, लेकिन ये अप्लाइड पार्ट है, एनालिटिकल पार्ट है, एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प इन स्कोरिंग मार्क्स. एक दो फैक्ट्स बता सकते हैं, व्हेन वन रिवाइज देन वन कैन ब्रिंग दैट्स ऑल आई कैन से. Strategic significance, competitive and transparent functioning when relevance of banks is declined, reliable alternatives. So solves complete finance dependence of global south and western powers driven by Bretton Woods institutions. New era of financial growth and availability will be driven by Asian and African nations. Therefore, the core of global funding has shifted to developing countries. That will reform rule-based order and necessary reforms in World Bank. I think good finishing, good, well written, and a high order answer, I would say. WTO is an important international institution where decisions taken affect countries in a profound manner. What is the mandate of WTO and how binding are the decisions? Critical analyze India's stand in the latest round of talks on food security. Established in 1994 under UG round, become the nerve center of the free and fair trade globally. Mandate क्या है? Stop trade discriminatory practices that misuse tariff and non-tariff barriers. Promote trade growth in developing countries in an equitable fashion. Encourage globalization. Tendencies to realize. तो हर पॉइंट में अगर हम देखेंगे तो एक कीवर्ड है, तो उससे आंसर बहुत फ्लो में आता है, जैसे ट्रेड ग्रोथ, ग्लोबलाइजेशन, वॉच डॉग. तो आई थिंक लैंग्वेज बहुत अच्छी है. इट गोज बियॉन्ड सुपरफिशियल लैंग्वेज. अगेन माई कीननेस इज कि बस जब हम एक रिविजन मारते हैं तो बस हम कुछ एक फैक्चुअल एस्पेक्ट लेके आ सकते हैं किसी पॉइंट में. दैट्स ऑल आई वुड से. अदरवाइज इट इज वेल रिटन. द डिसीजंस आर कंसेंसस बेस्ड, डेमोक्रेटिक, दो मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स व्हिच आर ऑब्लिगेटरी इन नेचर. इफ अ डेडलॉक अराइव, हाँ बिल्कुल सही बात है, जो डब्ल्यूटीओ की मिनिस्ट्रियल मीटिंग है वही सबसे की होती है. Or deadlock is arrived, the decision is taken by dispute settlement body which presently remains non-functional. Thus the relevance is declining. Agriculture subsidies by India are supportive measures which are non-discretionary for trade. Peace clause allows developing countries to give subsidy under blue box for agreement on agriculture, which is abided by India. India also maintains most favored nation status to its member countries. India has raised concerns about misuse of sanitary and phytosanitary measures that lead to food wastage. For example, mango shipments rejection by Europe from India led to loss of income to exporters to the tune of 5% of value. Another challenge is the countries deciding their development status, like China category itself developing nation, that leads to misuse of leverages. Also, inclusion of seafood, climate change debates at WTO are considered out of WTO's ambit without amendment by India. Therefore, pending reforms and resolution of Doha talks is necessary for WTO 2.0 to align with reglobalization changes in the world trade. आई थिंक अच्छा फ्लो है, क्लैरिटी है, अप्लाइड आंसर है, फ्लो में है. तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ फिर से वही बात है कि नहीं बोलूँगा कि हम अगर पहले की हम सीरीज को चेक करते हैं, पहले हमारे लेवल को देखते हैं तो मतलब हमें पता लगता है कि उसमें फ्लो नहीं था. इसमें फ्लो है, इसमें अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं. हाँ बिल्कुल सही बात है. अगेन डेटा कहीं कहीं आ सकता है, वो बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा मुझे कोई ऐसी ऐसी कोई विजिबल डायकोटॉमी आंसर में नहीं दिखाई दे रही है, जो कि वो एक अच्छे आंसर में 50% के आसपास स्कोर ना दिलवा दे. तो 50% के आसपास अगर एग्जैक्टली हमें चाहिए ही चाहिए तो हमें उसके लिए थोड़ा डेटा तो डालना पड़ेगा. उसके बिना एग्जामिनर अलग से इंप्रेस कैसे होगा, ये समझना थोड़ा मुश्किल है. I also agree with the fact that everybody cannot write in a such
फ्लो एंड सच रिदम ओनली विद एनालिसिस, नहीं हो सकता ऐसा, लेकिन आई विल वेट फॉर माई वर्ड्स टू बी ट्रू बिकॉज स्टिल वी हैव टू कवर अ लॉन्ग जर्नी. Discuss possible factors that inhibit India from enacting for its citizen a uniform civil code as provided for in the DPSP. So Article 44, UCC, political and social justice, harmonize diversity, fraternity as seen in the state of Uttarakhand. Varied religious beliefs and personal religious codes function in the existing framework, for example, Hindu religious code. Possible threat to ancient culture, beliefs and tradition vanishing due to UCC, tribal interest under threat. Will a true uniformity be achieved given a different states coming up with their unique CC models? For example, difference in Goa and Uttarakhand model. Will a UCC set of बहुत अच्छा लिखा, अगेन बहुत क्लैरिटी से लिखा, अगर ये 7 से 10 मिनट में लिख दिया जाए तो आई थिंक वी आर इन अ डिफरेंट लीग. Set of laws on paper really break the shackles of discriminatory social practices like patriarchy, which is deeply embedded in Indian society. Thus, more than a UCC framework, mindset change is necessary to achieve the UCC. Phased approach is suggested by Parliamentary Standing Committee. Therefore, established by society will decide effectiveness of UCC as witnessed during the farmers' protest and Waqf Act. Cool, I think without any antagonizing factor, you have done it well. IMF और वर्ल्ड बैंक किसी अंतरराष्ट्रीय कौन सी संस्थान, अरे कौन सी संस्थान है ये? निधि संस्थान जो वित्तीय सहायता प्रोवाइड करती है सर. हाँ, आर्थिक सहायता के लिए आर्थिक भागीदारी, प्रमुख उत्पादों को खरीदना, निश्चित मूल्य परसेंटेज की भागीदारी होना तथा संबंधित संस्थान के दिशा निर्देशों को मानना. WBIMF द्वारा SDR मुद्रा में विभिन्न IPR कॉपीराइट प्रौद्योगिकी संस्थान को बढ़ावा देना. वित्तीय संकट के समय लेन देन संबंधित विकासशील देशों में होते, तो दोनों को हमें गैप बताना था. तो ये अच्छा, पीछे दूसरा क्वेश्चन है ये तो है, नहीं नहीं, वही है ये AIB और नहीं वही सर, वाला क्वेश्चन है. दूसरा है सर. जी सर, ये वर्ल्ड पहले बैंक और वाले के उत्तर हैं। अच्छा, पहले वाला है, वही मैं कहूँ, ये तो डिफरेंट है जो हमने कल किया था. जी सर. तो वर्ल्ड बैंक और IMF के पूर्ण नियमों को ना अपनाकर भारतीय आत्मनिर्भरता सतत प्रयास के लिए नीति, एशिया विकास बैंक, ब्रिक्स जैसे संस्थानों के साथ भागीदारी, ऋण जाल में ना फंसकर द्विपक्षीय संबंधों की नीति के तहत क्षेत्रीय आर्थिक भागीदारी को बढ़ाना, जापान द्वारा भारत में विकास, ऑस्ट्रेलिया काबिल खनन को उत्पादन सहयोग, अच्छे पॉइंट्स हैं. ग्लोबल साउथ की नीति के तहत विकासशील देशों में आर्थिक और मानवीय सहायता प्रदान करना, अफ्रीका, घाना, इथियोपिया, पूर्वी एशिया द्वीप समूह का सहयोग करना. आई थिंक अच्छा लिखा, लेकिन वही है जैसे मैंने बोला कि थोड़ा और उसको लेके आते जाइए, जो हम हर बार बात बोल रहे हैं. भारतीय विदेश नीति के समय के साथ परिवर्तनशील हो रही है. गुटनिरपेक्ष बहुपक्षवाद की नीति जो गतिशील और बहुआयामी दृष्टिकोण की कूटनीति है, इस नीति का विस्तार क्षेत्रीय बैंकों के साथ सहभागिता और सदस्यता को अपनाना है. NDB जो ब्रिक्स द्वारा स्थापित बैंक है, जिसके माध्यम से इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का विस्तार, अच्छा वर्ड लिखा, विकासशील देशों को जोड़ना तथा यूएस से आधारित वित्तीय संस्थानों का एक विकल्प है. AIB एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की स्थापना के द्वारा बीजिंग द्वारा इसका उद्देश्य बहुपक्षीय संबंधी का विस्तार है. सामाजिक आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाना, सहअस्तित्व भावना को बढ़ाना, भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी पावर मजबूत करना, सागरमाला और पूर्व की ओर देखो नीति के विस्तार का महत्वपूर्ण है. टैरिफ और नॉन टैरिफ समझौते, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर. तो ऊपर जो हमने पॉइंट्स लिखे उन्हीं पॉइंट्स में यहाँ से अगर एक दो पॉइंट और जुड़ जाएं और वहां से आप इसको ले लो तो आई थिंक आंसर बिकम्स कंप्लीट, क्योंकि दोनों का डिफरेंस पूछा गया था. चलिए आगे. WTO द्वारा विश्व व्यापार के नियमों को निर्धारित करने, व्यापार को पारदर्शी बनाने, व्यापार संबंधी विवादों का निपटारा करने, सभी सदस्यों को इन नियमों को बंधनकारी बनाना. ठीक बात है. व्यापारिक समावेशीकरण, टैरिफ और नॉन टैरिफ निर्धारित विवाद, दो देशों के मध्य व्यापार विवादों को सुलझाना, भारत के हानिकारक इलेक्ट्रॉनिक कचरा डीलिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कचरा डंपिंग की समस्या, विकासशील और विकसित देशों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्रदान करना, खाद्य सुरक्षा. तो और ज्यादा लिखना है और अच्छे से लिखना है. भारत द्वारा निर्यात में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए टैरिफ और निर्यात शुल्क, मत्स्य पालन के लिए 10,000 करोड़ का निवेश, कृषि की बाधाओं को दूर करने के लिए किसान सम्मान निधि और उर्वरक सब्सिडी प्रदान करना, जो भारत की खाद्य सुरक्षा और निर्यात को सुरक्षित करती है तथा कृषि समझौते की बाध्यकारी प्रकृति को लचीले ढंग से अपनाती है. आई थिंक अच्छे पॉइंट्स में उभर के आ रहे हैं, लेकिन वही है कि आप पीछे वाले उसको देख के उसके साथ इसको मिक्स कीजिए. और एक आध फैक्ट्स और, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिकता संहिता का उल्लेख किया गया है. विविधताओं का देश है. 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, 29 अल्पसंख्यकों के लिए, 21 गरिमा प्रदान करना, धार्मिक व्यक्ति से कानूनी समानता के साथ समुदाय के विवाद, हिंदू कोड बिल. तो आपको बात बतानी, जैसे हमने इंग्लिश में लिखा कि हो क्या रहा है, क्या होना चाहिए, तो आप लिखते देते हो लेकिन वो जुड़ता नहीं है आपस में. और ऊपर से घबराहट और कम होनी चाहिए, और क्लैरिटी से कॉन्फिडेंटली छोटा सेंटेंस बनेगा, तब जाके पूरा निकल के आएगा. तो मानसी, व्हाट डू यू से? सर जैसे आप बोल रहे हो कि फैक्ट्स इंक्लूड होने चाहिए, सर भाई फैक्ट्स होने, मतलब कैसे बोल रहे हो, मैं मेरे को फैक्ट्स क्लियर। ऐसे बोल रहे हैं जैसे जैसे अब आपने बोला, जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए आपका क्वेश्चन था AIIB और NDB एंडिंग। का था, तो आपको ये तो बताना पड़ेगा कि उसका जो कैपिटल है या जो उसकी जो वर्थ है
जी क्या उसका अमूमन दोनों की वर्थ में क्या फर्क है, और दोनों का फंडिंग का बेसिस क्या है, कौन सी कंट्री कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, इंडिया का शेयर कितना है, अगर है भी तो दोनों में शेयर है ना, इंडिया का पैसे तो देंगे तभी तो पैसा आएगा। तो डिस्टिंक्शन इन रोल के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो वो तो रोल बोल रहा है तो रोल तो जब होगा जब उनका स्ट्रक्चर, उनके स्ट्रक्चर में फर्क है तो रोल में फर्क है। हम्म स्ट्रक्चर में फर्क है तो डेवलपमेंट बैंक जैसे आपने बता दिया ना, एनडीबी आपने भी जी बता दिया अफ्रीका में जाएगा आप, तो एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ऐसा बताना पड़ेगा जो कि लेसर नोन है, या जो मतलब कि है लेकिन किसी को पता नहीं ज्यादा। जैसे अब हम्म कुछ भी हो, हम कुछ भी कर रहे हो, हम क्रेडिट लाइन दे रहे हैं श्रीलंका को, हम क्रेडिट लाइन दे रहे हैं भूटान को, हम क्रेडिट लाइन दे रहे हैं नेपाल को, हम क्रेडिट लाइन दे रहे हैं अफगानिस्तान को भी, जो भी हम, लेकिन हम रोज रोज उसकी बात नहीं करते। तो जी सेकंड लेयर वही है कि जो दिखता है वो नहीं है। हम पाकिस्तान से कितना भी लड़ लें, लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारा न्यूक्लियर समझौता है, पाकिस्तान के साथ हमारी बातचीत होती है। थर्ड, कई ऐसी चीजें हैं जहां पाकिस्तान और इंडिया मिलकर बात करते हैं अभी भी। हम्म बात आप समझे? वैसी है जैसे रशिया और यूएस जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में तो दोस्त बने हुए हैं, यहाँ एक दूसरे की जान लेने पे लगे हुए हैं। तो मतलब हम्म आपको आंसर में वही वैसे वाला वो जैसे इसमें ये आ सकता है। और दूसरा जैसे क्वेश्चन जो था आपका ये जो जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड का था, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में पहले किसने क्या बोला है, अंबेडकर साहब का एक सेंटेंस आ गया कि ऐसा होता तो तभी इम्प्लीमेंट ना हो जाता, या फिर उसके बाद किसी गवर्नमेंट ने क्या बोला, किसी पार्लियामेंट्री कमेटी ने क्या बोला, ऐसे ही लिख हम्म दो। वही अलग करेगा कैसे और अलग होगा? क्लैरिटी तो आ चुकी है, क्लैरिटी तो हम्म आ गई। तो क्लैरिटी आ गई तो आपको एक लेवल ये उठ सकता है, बस इतना बोलने से हो जाएगा। और तीसरा जो क्वेश्चन था वो डब्ल्यूटीओ वाला है, तो डब्ल्यूटीओ का बिल्कुल सही बोला, डब्ल्यूटीओ का बता दिया, लेकिन डब्ल्यूटीओ के अंदर भी जैसे अब डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म वो नहीं चला, वो मतलब कि खराब, मतलब उसको 2020 की या 21 के बाद वो डिफंक्ट हो जाता है सपोज करो। तो उसके बाद एक केस बताओ जो उसके खत्म होने की वजह से हमें नुकसान हुआ जी और हमें लॉस हुआ। तो मतलब आप एनालिटिकल जब बात करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर की जब आप बात करते हैं, यू बिकम ए प्रॉब्लम सॉल्वर रादर देन जस्ट राइटिंग आंसर। आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हो तो फिर उसके हायर लेवल, फिर आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हो। खुद ही आप हम्म लिख भी रहे तो आपको पता है इससे आगे मैं क्या बोल सकती हूँ। यानी जी डब्ल्यूटीओ के डिसमेंटलिंग होने का भी जो ये आपके जो डेवलप कंट्रीज हैं, दे हैव टेकन बेनिफिट बेसिकली। हम्म डब्ल्यूटीओ के ये होने की वजह से ग्लोबल जो ट्रेड है उसके अंदर कम से कम 5% की गिरावट आई, एक तरीके से आप मान लो। हाँ जी बस ये बात ठीक हुई है ना। और दूसरा, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी जो हर कंट्री कर रही है, हम्म तो जो हर कंट्री का तो रूल बेस्ड ट्रेड ऑर्डर कहाँ, वो तो चैलेंज हो गया। जैसे आपने बोला भी कि चाइना जो है डेवलप्ड होने के बावजूद डेवलपिंग कंट्री जैसा दिखावा करता है और उसके फायदे हाँ उठाता है। हाँ तो जी बस इसी डायरेक्शन में है थोड़ा सा। हम्म ये जैसे जब आप बात करते हैं कि जैसे आप बात करते हैं जैसे कि अब पीएम इंटर्नशिप स्कीम आई लास्ट ईयर, तो जी राज्यसभा में बोला गया कि भाई हमने तो चाहता था 1.5 लाख 2 लाख हो, 2 लाख हम चाहते हैं कि इंटर्न्स होने चाहिए, हम्म लेकिन 84,000 इंटर्न्स ने सिर्फ मान लो किया, या 60,000 इंटर्न्स ने सिर्फ किया, बाकी इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे। हम्म कारण पैसा उन्हें बहुत कम लगा, 5,000, और ऊपर से 500 रुपये मिनिमम कंपनी को बोला कि 500 रुपये आप कर सकते हैं मिनिमम, बाकी आपकी इच्छा। तो इतना हाँ इंसेंटिवाइज नहीं लगा, इतने में तो उसको लगा यार ये क्या है, क्योंकि इसका मतलब है वही भारत पॉवर्टी से ऊपर उठा है, हम्म तो अब पैसे की इसकी कीमत ही नहीं रहेगी। वरना पहले आदमी फ्री में भी काम करता था 6 6 महीने साल भर, हाँ हाँ फिर जी उसको बोलते थे खाना मिलेगा आपको और आपको आने जाने का किराया दिया जाएगा। अब ऐसे कोई हम्म काम करने को तैयार है? नहीं नहीं है। बस ये फैक्ट लेके आना ना, ये बात है। फोन सबके पास है, कमाई हो ना हो, 12वीं के बच्चे के बाद 10वीं के बच्चे के पास फोन है। पहले आप हम्म नौकरी करके 2 साल बाद 1 साल बाद फोन मिलता था आपको। हाँ जी तो ये जो सच्चाई है, ये सच्चाई का जो व्यक्तित्व विकास वाला एस्पेक्ट है वो यहाँ लाना पड़ेगा ना। हाँ जी भाई आप खुद ही सोचो कि इतने सारे अब ये नेल आर्ट, पेंट आर्ट कैसे है हम्म ये सिर्फ अर्बन में नहीं है, रूरल में भी पेनिट्रेट कर गया है। फिर ट्रेंड इज देयर। ये हो गया नेल आर्ट, पेंट आर्ट, फिर कंजम्पशन। आप सोचो जगह जगह जिम खुल गए, इतने सारे जिम और फूड, हम्म ग्रोसरी। तो ये क्या है, ये ट्रेंड दिखाता है। तो आपको सोचना है कि इंडिया, मतलब इंडिया में जो टाइगर बिस्किट है ब्रिटानिया का, हम्म वो कोई मार्जिन नहीं रखता, लेकिन ब्रिटानिया टारगेट फिर भी, मतलब जो केक आता है 20 रुपीज का केक है जो ब्रिटानिया का, 1000 करोड़ उसका टर्न ओवर है। जी 1000 करोड़ के आसपास है, सोचो 1000 करोड़ केक। हम्म हाँ मतलब
जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो इस तरीके से बात आपको सोचनी पड़ेगी ना। फिर भी इंडिया में पेनिट्रेशन स्कोप बहुत ज्यादा है, स्कोप बहुत हम्म ज्यादा है, हर चीज का स्कोप है। वॉशिंग मशीन 15% से ज्यादा पेनिट्रेशन नहीं है, फ्रिज का पेनिट्रेशन अभी भी नहीं है, एयर कंडीशन का नहीं है। अर्बनाइजेशन, टुडे ओनली आई एम टेलिंग, अर्बनाइजेशन बाय 2050 इज गोइंग टू बी अराउंड 50%, सपोज। जी उस तरीके से अर्बनाइजेशन अभी तो मतलब 50 मतलब और बढ़ जाएगा, लेकिन साथ हम्म में क्या हो रहा है फिर, साथ में हीट आइलैंड बढ़ जाएंगे। जी शहर हीट आइलैंड बन रहे हैं, शहर जो है वो तैयार नहीं है, अनप्लैंड है। हाँ, हम्म एरिया सबमर्ज हो जाएंगे। जी तो सर यानी कि जो डेथ अभी हो रही है कंपेरेटिवली 20% डेथ और ज्यादा बढ़ जाएंगी। क्लाइमेट हम्म चेंज रिलेटेड डेथ्स, 20% मोर डेथ्स विल बी अकरिंग। जी आप अगर ये बात बोलते हो कि 20% मोर डेथ्स आर श्योर टू बी अकरिंग, देन व्हाट वी कैन डू टू प्रिवेंट इट, हम्म टू मिनिमाइज दैट डेथ, दैट इज व्हाट इज द आंसर इज ऑल अबाउट। जी तो यू आर क्रिएटिंग योर ओन सीन। तो ये हो रहा है ना, ये तो भाई दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम तो आज भी सही नहीं है। हम्म 20 साल बाद पेरिस कैसे हो जाएगा एकदम से? उसके लिए तो पॉपुलेशन भी तो बढ़ती जाएगी। हाँ भाई आप तैयारी कर रहे हैं, सेम लेवल पे आप तैयारी कर रहे हैं, और वो इनफ नहीं है, तो कितने ही साल करते रहो उसको हाँ जी हाँ सर सेम वे। So this is हम्म what I am actually trying to say. So do not become too verbose, but then try to have data, little bit of data for everything side by side. So जी that is what I can do. आप क्या कहेंगे दिव्या? जी सर। सर कीवर्ड्स और जो कॉन्सेप्ट है सर उसको क्लैरिटी के साथ लेकर आना है सर, छोटे फॉर्म से कम वर्ड Yeah. में। Thank you very much, both of you, for such a wonderful opportunity, whereby we are bringing good ideas and trying to provide the best, and so that the learning process becomes truly engaging and truly experiential, thereby bringing success near to you. Thank you very much for working on different programs with Ansarkari.